Before we could take a start, I would really like all of you to take just 10 seconds and pray inside that, hopefully that COVID situation and PIA crash, whatever damages that is happening to the entire humanity, we must pray. So let's just give like half a second to 5 seconds to just pray. All of us, if we can recite something inside our, heart, and then we must pray a little as well. So let's just start that, and I'll just get back in 2-3 seconds to you. Ji. Hi everybody, this is Dr. Shalina Bhamani. I've done my PhD in education with specialization in early childhood development, and I'm an ECD specialist. Today I'm here to learn with you guys what are the 10 skills we can teach our kids amidst coronavirus lockdown. So since now we have a lot of time and it's been almost like 2.5 to 3 months that we are home with our young ones, and we're really thinking that in last 3 months what have we achieved, and if the lockdown continues for another month or so, what are those crucial kids must know. थोड़ा सा बाइलिंगुअल मैं अप्रोच लूँगी ताकि जो है आप सबके लिए ये ईजी हो जाए कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें ड्यूरिंग दिस वेबिनार. सो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कोविड के लॉकडाउन में इनिशियल फर्स्ट मंथ तो हमें उसकी अडेप्टेशन में लगा. That means कि we were trying to actually see and adapt our life routine and schedules to see the lockdown, to practice hygiene, to make children understand कि हम सब घर पर क्यों हैं, स्कूल्स क्यों बंद हो गई हैं, फ्रेंड्स से क्यों नहीं मिल सकते हैं. और फिर जैसे ही एक महीना गुजरा या 2-3 वीक्स गुजरे तो स्कूल्स ने ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी शुरू कर दिए. Now it's a time where most of us are running out of activities. We are reflecting कि चलो अब स्कूल खुल जाएगी, अब शायद लॉकडाउन में ईज़ आ जाएगा. But we need to really question ourselves that पिछले 2-2.5 महीने में हमारे बच्चों ने ऐसी क्या कोर स्किल्स डेवलप की या हमने ऐसी क्या कोर स्किल्स डेवलप की और किस तरह से जो है हम इसको बिल्ड ऑन कर सकते हैं अगर अगले महीने लॉकडाउन कंटिन्यूज. So those are the 10 basic skills that we'll be learning. I mean, the following skills that we will be learning. You can perhaps go back and evaluate कि क्या आपके बच्चे ने ये 10 skills सीखी. ज़रूरी नहीं है कि ये 10 skills ही हों. There could be many other skills you might have taught your younger ones, but these are a few essential most skills जो कि कोशिश करें कि आपके बच्चों को. I'd like to put forward a disclaimer that there is no financial or any other benefit that I'm taking out from this session. Apart from that, I've used the resources from different references, and you're free to contact me post sessions if you have any questions or queries. Thank you. Today's short webinar, which is hardly consisted of like 20 minutes and a few questions to follow, we will be learning why focus on essential skills, what are 21st century learning skills and some essential skills, what are the domains of skills, how are skills divided, then what are the skills we should teach to our younger ones, and not only to teach younger ones, but we should also have those skills with us. So we'll talk about that, and this webinar is going to be very, very short, and that is the reason that I'll always be available after the webinar. You can comment, you can tag me, you can message me, and I'll be there to help you or answer any of your questions and queries. I focus on essential skills. सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि essential skills कहते किसे हैं. Essential skills वो ज़रूरी skills होती है, यानी वो ज़रूरी हुनर, वो ज़रूरी आदत होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत important होती है to lead a very good life, to manage a life that is moving towards well-being. यानी कि हमें लाइफ को मैनेज करने के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं असेंशियल स्किल्स. और चूंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हमारे बच्चे 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, तो हम इसे कहते हैं 21st सेंचुरी असेंशियल स्किल्स, यानी वो स्किल्स जो कि 21st सेंचुरी में रहने के लिए काम आए या असेंशियल हों. क्यों ये ज़रूरी है? बिकॉज ये आप समझ लें कि इसका एक ही आंसर है, बिकॉज ये ज़रूरी है.
क्योंकि इसकी नीड है, हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, बिकॉज़ ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हम अपनी करंट लाइफ को मैनेज करें, अपने फ्यूचर को मैनेज करें, और इसी तरह हमारे बच्चों में ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को करंट माहौल में मैनेज कर सकें और आने वाले फ्यूचर के लिए भी तैयार हों। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना, क्योंकि इससे उनमें इंडिपेंडेंस आती है, यानी ऑटोनॉमी आती है। वो एक ऐसी चीज़ को, स्किल को अपनी अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उसको लर्न कर रहे होते हैं, जिससे वो खुद मुख्तार होना सीखते हैं, एक ऑटोनॉमी लाते हैं अपनी लाइफ मैनेजमेंट में। यही स्किल्स उन बच्चों को, हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाता है। वो उन्हें तैयार करता है कि वो फ्यूचर में जाके दुनिया के साथ आगे चलना सीखें, आगे बढ़ना सीखें। आप ये समझ सकते हैं कि उनको जीने के लिए ये प्री रेक्विजिट है, यानी कि ये रिक्वायरमेंट है हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के लिए। लिटरल डेफिनेशन 21st सेंचुरी स्किल्स जो है वो 3 स्किल्स में डिवाइड होती है। फाउंडेशन लिटरेसीज, कॉम्पिटेंसीज जो कुछ हम बच्चों को सिखाना चाह रहे होते हैं, और कुछ कैरेक्टर क्वालिटीज़। फाउंडेशनल लिटरेसी यानी कि बच्चे जो है ये कोर स्किल्स जो है अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। ये वो लिटरेसीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू कॉल योर सेल्फ एजुकेटेड और लिटरेट। सबसे पहले तो लिटरेसी मीन्स लैंग्वेज। सेकेंड कॉम्पोनेंट इसका है न्यूमरेसी, यानी नोइंग नंबर ऑपरेशंस। थर्ड इज साइंटिफिक लिटरेसी, यानी children should understand small scientific concept like day and night, weather, seasons, the basic information. Fourth is ICT literacy, जिसे हम digital skills भी कहते हैं. Then it comes financial literacy, यानी कि regular financial management, budgeting, knowing money concept. Sixth is cultural and civic literacy, यानी कि पता होना चाहिए कि कहाँ रहते हैं, उनका context क्या है, हम किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, हमारे जो हैं कुछ सिविक रूल्स क्या हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स आर द अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट दैट वी टीच आवर किड्स। सो ये 6 चीज़ें जो हैं वो हमारी फाउंडेशन लिटरेसी कहलाती है। ज़्यादातर इसमें जो रोल स्कूल प्ले करती है वो नंबर 1 लिटरेसी, नंबर 2 न्यूमरेसी, नंबर 3 साइंटिफिक लिटरेसी, ICT लिटरेसी एंड कल्चरल एंड सिविक लिटरेसी। ये 5 चीज़ें स्कूल काफ़ी सिखा रही होती है, इंक्लूडिंग अ बिट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। मगर सबसे ज़्यादा रोल जो है टीचर्स का है वो फर्स्ट 4 स्किल्स सिखाने में, यानी लिटरेसी, न्यूमरेसी, साइंटिफिक लिटरेसी, ICT लिटरेसी। और पेरेंट्स और केयर गिवर घरों में जो होते हैं उनका रोल है उनको फाइनेंशियल लिटरेसी और कल्चरल और सिविक लिटरेसी को ज़्यादा इन्हांस करना। बट ओवरऑल ये 6 स्किल्स जो हैं, 6 लिटरेसीज जो हैं, वो हर बच्चे को आनी चाहिए, और एटलीस्ट उनकी बेसिक कमांड इन 6 लिटरेसी में होनी चाहिए। क्योंकि ये जो लिटरेसी है वो आपको लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज आपको एक्सप्रेशन सिखाती है, बात करना सिखाती है, सुनना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है। न्यूमरेसी जो है वो आपको छोटे मोटे नंबर ऑपरेशन सिखाती है कि जैसे 2 और 2 चीज़ें देखी तो वो कितनी चीज़ें हुई, 4 चीज़ें हुई। अच्छा, अगर हमने 10 रुपये में से जो है 8 रुपये का आटा ख़रीदा तो कितनी पैसे हमारे पास बचे, 2 रुपये बचे। तो इस तरह की न्यूमरेसी, नंबर ऑपरेशंस हमें काफ़ी सिखाती है। साइंटिफिक लिटरेसी की, यानी आजकल जो बहुत चला हुआ है कि ब्लीच और डिटॉल साथ मिला देंगे तो गैस जनरेट होगा। सो टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स ऑफ बेसिक साइंटिफिक लिटरेसी कि ह्यूमन बॉडी कंपोज किससे होती है, 70% वाटर होता है, 30% अदर थिंग्स होती है। यू नीड टू give them basic scientific literacy, what body is composed of, what is day and night, what is seasons. इसी तरह ICT literacy यानी कि digital skills, they all kids should know how to operate a tablet, how to operate computers. ये हम आगे जाके भी थोड़ी इस पर डिटेल में बात करेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी यही कि बजट क्या होता है, किस तरह से 10 रुपये हो तो उसमें हमें कोई एक छोटी सी चीज़ ख़रीदनी है खाने की, कोई एक छोटी सी चीज़ पीने की ख़रीदनी है, तो ये अर्ली फाइनेंशियल लिटरेसी होती है। कितने पैसे हमें बचाने हैं, कितने खर्चने हैं, ईदी मिलेगी तो ईदी में से कितने पैसों की हमें चैरिटी करनी है, कितने पैसों की हमें सेविंग करनी है, कितने पैसे हमें खर्च करने हैं। सो ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। कल्चरल एंड सिविक लिटरेसी, जैसे कि बहुत बुरा वाक़या हुआ संडे को, that is about our culture, that is about the civic literacy, to know that what type of a context we live in, what is our culture. Religion, culture is composite of religion, food we eat, the way we think, the way we follow principles, the way we sort of like design our values, that is cultural literacy. So ये foundational literacies बच्चों के पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम 21st century में competencies की बात करते हैं।
which means we need to prepare our children to become critical thinkers, यानी कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ना कि प्रॉब्लम डिगर बने। प्रॉब्लम से पहले उनके पास सल्यूशंस हो। तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ें लेकर आपके पास आते हैं, ओ मम्मी देखो मेरा इनसे झगड़ा हो गया, या ओ टीचर शी इज़ फाइटिंग विथ मी। सो वी नीड टू टेल देम, ओके नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम बट हाउ डू यू सॉल्व इट। So always go towards providing them with solutions. The other thing is creativity. Allow them to create things, innovate things, produce things. Other thing is communication. Give them platforms where they can communicate not only to their families, to their siblings, to their peers, but to the wider audience as well. Allow them to collaborate, because that is also one of the competency of 21st century. Allow them to connect virtually to their friends in times of COVID. Allow them to connect to different people in their families, extended family. Allow them to connect with other people and create something. That is collaboration, when you not only connect with the other person, but together as a team you're creating something, when you're collaborating. Encourage curiosity. अब हम कैरेक्टर क्वालिटीज़ की बात करते हैं. Curiosity is a character quality every बच्चा, every child should have. You know, हर बच्चे में हमें curiosity. तभी आप देखें बच्चे इतने questions करते हैं. They are born curious, and that is what we need to also inculcate. इनिशिएटिव लेना सिखाएं बच्चे को, कि खुद से प्रोएक्टिव हो, persistent हो, एक चीज़ को करता रहे, ऐसा ना हो बीच में गिव अप कर दे। ये स्किल्स भी 21st सेंचुरी की स्किल है, अडेप्टेबिलिटी। न्यू सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करना, अपने बिहेवियर को अडेप्ट करना। लीडरशिप स्किल जो है वो है, उनको सिखाएं कि एक रोल में जो है उनको किसी भी एक चीज़ की लीड दे दें, कि ठीक है घर में जो है प्लेट्स लगाने की जिम्मेदारी आपकी। मेक देम लीडर ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन योर हाउस। लीडरशिप इज़ अ स्किल। स्कूल में, क्लासरूम में आप मॉनिटर बनाते हैं, एवरी मंथ एक नए बच्चे को मॉनिटर बनाएं, या हर बच्चे का एक अपना टास्क दें, दैट यू आर लीडिंग दिस टास्क, एंड दैट इज़ हाउ यू आर इनकलकेटिंग लीडरशिप स्किल्स। 16वीं स्किल जो है 21st सेंचुरी स्किल की, वो है सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। यही जो हम इससे पहले कल्चरल लिटरेसी की बात कर रहे थे, ये इसी का एड ऑन कनेक्शन है। सो ये कुछ 3 कॉम्पोनेंट्स, मेजर कॉम्पोनेंट्स के अंदर हमारी 21st सेंचुरी की स्किल्स डिफाइन है। आई एम श्योर कि हमें स्किल्स की थोड़ी सी ओरिएंटेशन मिल गई होगी। आप इसके बारे में मज़ीद भी रीड कर सकते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स होती क्या है। आज के सेशन में जो हम बात करेंगे कि हमें बच्चों को ऐसी क्या क्या चीज़ें सिखानी, कौन सी स्किल सिखानी है। इसी 21st सेंचुरी के रेफरेंस फ्रेमवर्क को लेकर मैंने अपने सेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, कि बच्चों की वर्क स्किल्स क्या होनी चाहिए, बच्चों की डिजिटल लिटरेसी में कौन सी स्किल्स हमें बच्चों को सिखानी चाहिए जो मोस्ट असेंशियल है, उन्हें लर्निंग एंड इनोवेशन की हमें कौन सी स्किल सिखानी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हें लाइफ स्किल्स कौन सी हैं। वर्क स्किल्स वो होती हैं जो उन्हें फ्यूचर में काम आएगी, या ऐसे मौक़ों पर काम आएगी जब वो मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी तो इज़ अ टाइम ऑफ नीड ऑफ द टाइम। हर बच्चे को टैबलेट कंप्यूटर यूज़ करना आज के ज़माने में आना चाहिए, स्पेशली द चिल्ड्रन हु आर ओवर द एजेस 3, और बच्चे आई थिंक आजकल के उससे पहले ही सीख जाते हैं डिजिटल लिटरेसी। लर्निंग, बच्चों को सीखने आना चाहिए कि सीखना कैसे है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड इनोवेशन, यानी कि उनमें एक जो है ना, एक तजस्सुस होना चाहिए, एक उनमें पैशन होना चाहिए टू क्रिएट न्यू थिंग्स। और लाइफ स्किल्स, यानी बेसिक लिविंग स्किल्स क्या है। तो आज जो हम बात करेंगे कि हमें बच्चों को कौन सी एसेंशियल स्किल सिखानी है, वो इन 4 कंपोनेंट्स के मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे। तो आई होप आफ्टर अंडरस्टैंडिंग के एसेंशियल स्किल्स होती क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, 21st सेंचुरी स्किल्स होती क्या है, किस तरह से बच्चों को सिखानी चाहिए, और आज का हमारा 4 कंपोनेंट्स जिसमें हमने सेशन को डिवाइड किया है। लेट्स कम टू द पॉइंट एंड सी व्हाट आर दोज बेसिक एसेंशियल स्किल्स वी मस्ट टीच टू आवर किड्स एंड आवर यंग वंस। सबसे पहले और सबसे एसेंशियल स्किल सेट की हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं लाइफ स्किल। हमने खुद देखा कि ये कोविड की वबा ऐसी हम पर आई हुई है कि एकदम से ही अचानक से हमारे दरमियान ये वायरस आ गया। इसी तरह हमने ये वाक़या जो देखा जो फ्राइडे को हुआ प्लेन क्रैश का, ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड वाक़ये हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, ह्यूमन मेड, मैन मेड डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, और किस तरह हमें बेसिक लाइफ का कुछ पता नहीं है। वी डोंट नो व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू लिव। सो व्हाट आर दोज लाइफ स्किल्स, essential life skills we need to prepare our young ones, young kids.
ये जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो आप 2.5 साल से लेके ऑनवर्ड्स बच्चों को करवा सकते हैं, मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि पहले छोटी छोटी चीज़ें करवाएं और फिर उसकी सिवियरिटी बढ़ाते रहें। लेकिन अगर आपके बच्चे 3 साल से लेके 6 या 8 साल तक के हैं तो इंश्योर करें कि उन्हें ये स्किल्स आती हो, किसी भी लेवल की आती हो। सो लाइफ स्किल्स 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। सेल्फ मैनेजमेंट, यानी अपने आप को कैसे मैनेज करना है। इंडिपेंडेंट लिविंग, यानी अकेले रहने के कुछ स्किल्स क्या हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन हर बच्चे को आनी चाहिए। और हेल्थ मैनेजमेंट, अपनी हेल्थ को मैनेज कैसे करना है। जी हाँ, ये 4 के 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो जितना अर्ली हम बच्चे को स्टार्ट करवाएंगे उतना वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि आज आई डोंट वांट टू अगेन एंड अगेन टॉक अबाउट इट कि आजकल कितनी एडवर्सिटी चल रही है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। हमें हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि सेल्फ मैनेजमेंट में ऐसी क्या बातें हैं, एसेंशियल स्किल्स हैं जो हमें बच्चों को बतानी है। सबसे पहले टीच देम प्रोटेक्शन एंड सेल्फ डिफेंस। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके बच्चे को प्राइवेट पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके बच्चे को प्राइवेट पार्ट्स के प्रोटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। मेक श्योर यू कीप रीइंफोर्सिंग सच कॉन्सेप्ट्स टू योर यंग किड्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ करना कैसे है। बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। सेकेंडली, सेल्फ मैनेजमेंट में जेंडर, कोशिश करें कि लड़के लड़कियों के दरमियान ज़्यादा फ़र्क ना करें और ना ही ये फ़र्क उनके जहनों में डालें कि तुम औरत हो, तुम कमज़ोर हो या तुम ताकतवर हो, तुम मर्द हो, तुम कमज़ोर या ताकतवर हो। कोशिश करें कि बच्चे जो हैं वो जेंडर सेंसिटिव हों, ना कि जेंडर बायस्ड हों। सो ये छोटे बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि उनके रोल्स जो हैं वो उनकी एबिलिटी के थ्रू डिफ़ाइन होते हैं, ना कि उनके जेंडर के थ्रू। थर्ड थिंग, टेबल एटिकेट्स। बहुत अच्छा चांस है, आपके बच्चे आई एम श्योर वैसे भी टैबलेट्स पे वीडियोस देख रहे होंगे, कंप्यूटर पे वीडियोस देख रहे होंगे, आप सब भी देख रहे होंगे। हम सब के घरों में माशाल्लाह से स्मार्ट टीवीज़ हैं, एलईडीज़ हैं जो कि कनेक्ट हो जाते हैं। कोशिश करें बच्चों को कोई एक अच्छा टेबल एटिकेट सिखाएं। हाउ टू ईट विद नाइफ एंड फोर्क, हाउ टू ईट विद दो स्टिक्स, you know, so teach them how to go about learning a new table etiquette, how to drink water, how to drink a juice, how to put the napkin on your lap and eat, how to put napkin or how to have the napkin on your around your neck and eat. So teach them some table etiquettes. It's very very important and it looks also very organized as well क्योंकि बड़े होकर ये बच्चे अपने काम पर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। They should know how to eat sandwich. Eating sandwich is a different way, eating rice is a different way, how to eat fruits. So you can also watch some videos, learn yourself and also teach these to your kids. Second component is independent learning, utmost important. 3 साल से लेके 8 साल तक के बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि बिना चूल्हा जलाए कौन सी चीज़ें हैं जो वो कुक कर सकते हैं, उनका खाना कहाँ पड़ा हुआ है। येट अगेन मैं बहुत ज़्यादा इस सेशन में सेंसिटिव बातें नहीं करना चाहती हूँ एंड आई रियली विश अगर कोविड की वबा नहीं होती और जो ये वाक़या हुआ है प्लेन क्रैश का वो नहीं होता तो मैं यहाँ आपको एक ट्रेलर दिखाती जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग ट्रेलर है एक मूवी का। उसका नाम है पीहू। पीहू एक ऐसी बच्ची होती है जिसकी मदर की सडनली डेथ हो जाती है और वो घर में अकेली होती है एंड दैट इज़ अ मस्ट वॉच मूवी फॉर एवरी पेरेंट। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा एडवर्स और सैड मूवी है जो कि आपका दिल बिल्कुल झंझोड़ के रख देगी, बट दिस इज़ अ मूवी वी ऑल शुड सी एंड वी नीड टू सी हाउ वी शुड प्रिपेयर आवर किड्स एंड हाउ ऑब्जर्वेंट दे आर। वो कितना ऑब्जर्व करते हैं एनवायरनमेंट से और उनके लिए अकेले घर में होना कितना डिफ़िकल्ट है। खैर वापस पॉइंट पर आएंगे। इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है जिसमें कुकिंग। टीच देम एटलीस्ट हाउ टू मेक 5 डिफरेंट डिशेस। आप ये अपने पास नोट कर लें, एक चेकलिस्ट बना लें। ये देखें कि क्या आपके बच्चे को 5 डिफरेंट चीज़ें बनाने आती है बिना जिसमें चूल्हा ना यूज़ हो, जिसमें कोई आग यूज़ ना हो, जिसमें ओवन यूज़ ना हो, इलेक्ट्रिक यूज़ ना हो। क्या वो अपने लिए 5 डिशेस बना सकता है। लॉन्ड्री, क्या आपका बच्चा जो है अपने छोटे मोज़े, अपना छोटा सा टी शर्ट हाथ से सर्फ से धो सकता है या धो सकती है। डू दे नो हाउ टू वॉश देयर ओन क्लोथ्स।
सिमिलरली आप उनको कमरे का आधा सेक्शन असाइन कर दें या आधा, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे कर सकते होंगे ये चीज़ें, बट मेक श्योर यू मेक अ लिस्ट एंड बिफोर द schools reopen you must have taught them every single thing that we are talking about over here today. हाउस क्लीनिंग उनको आती है या नहीं आती? डू दे नो कि स्विच बोर्ड्स को टच करना इट कैन बी डेंजरस? डू दे नो हाउ टू क्लीन अ स्विच बोर्ड? डू दे नो हाउ टू मोप द फ्लोर विथ ऑल सेफ्टी मेजर्स? सो यू नीड टू मेक एंड पुट डाउन अ लिस्ट कि क्या आपके बच्चे को 5 डिफरेंट खाने बनाने आते हैं, क्या उसे अपने कपड़े धो रहा है, क्या वो घर क्लीन कर रहा है. इफ़ दे आर डूइंग दीज 3 थिंग्स, you know, they're good and independent enough to pursue their lives. I mean, at least obviously every child needs an adult guidance, but उनको थोड़ी मोरी चीज़ें independent living के towards ready करती है. बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को. आई डोंट नो हाउ फार आप में से कितने लोग इसको अग्री करेंगे, बट टीच देम हाउस लॉकर्स, कि जस्ट इन केस अगर पेरेंट्स ना हो, तुम्हारे घर में कोई भी ना हो, आपके अराउंड कोई भी नहीं है, तो उस बच्चे को पता होना चाहिए कि उसके घर का लॉकर कहाँ है. वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि देखिए आजकल दुनिया का कोई भरोसा नहीं है. यू नेवर नो वेयर थिंग्स आर मूविंग. If your kid is ages 6 and 8 above, they must know, if not at least the house locker, but they should know some basics about your personal belonging. अपनी विल बनाएं और उस विल को बच्चे को बताएं कि ये ऐसी एक फ़ाइल है जिसमें आपके लिए कुछ रखा है मम्मी डैडी ने. तो टीचर्स जो यहाँ पर हैं वो पेरेंट्स को सिखाएं कि दे हैव टू मेक अ विल फॉर देयर किड्स एज वेल. So teach them house lockers, and teachers should also in the classroom teach them the importance of learning all of these things. Teach them where is the basic money available. Not a lot. आपको बच्चे को कोई ऐसे जेवरात बहुत सारे अपनी जो है वेल्थ से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है, बट उन्हें दिखाएं कि बेसिक अमाउंट कहाँ पड़ी होती है जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी. कीप अ बॉक्स एंड से इमरजेंसी फंड, एंड यू नो कीप जस्ट 50, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ ओवर देयर, जितना भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, जो कि आपको पता है कि डैमेज फंड है. हो सकता है आपका बच्चा वो स्टील भी कर ले, जिसकी आपको अलग तरीके से बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी. But make a emergency money zone where your kid knows where the emergency money is. बच्चे को अपने घर का प्रॉपर ओरिएंटेशन दिलवाएं, और ना सिर्फ ओरिएंटेशन दिलवाएं, नॉट ओनली घरों का बल्कि क्लासरूम और स्कूल्स का भी. आप उनको दिखाएं कि सेफ जोन क्या है और डेंजर जोन क्या है. एंड इफ़ यू वांट टू रियली असेस देम, टेक देम अराउंड एंड आस्क देम कि आप मुझे दिखाएं कि घर में सेफ जोन कौन सा है और डेंजर जोन कौन सा है. अब डेंजर जोन कुड बी अ बर्निंग स्टोव नियर द किचन, and safe zone could be a bed. So you have to decide what is that safe zone and the danger zone in your house, in your school, in your classroom, and teach the zones to kids. जैसे कि आपने देखा होगा कि balcony है तो उसकी railings जो हैं, in my opinion it's a danger zone. So you need to teach kids that you always have to be in the safe zone and not in the danger zone. उन्हें बेसिक फैमिली मेम्बर के कॉन्टैक्ट नंबर्स याद करवाएं, सिर्फ आपका, आपके हस्बैंड का या आपके टीचर का नहीं. बच्चे को स्कूल का नंबर भी याद होना चाहिए, टीचर का नंबर भी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स भी याद होने चाहिए, कुछ और एडिशनल फैमिली वालों के नंबर्स याद होने चाहिए. कोशिश करें कि आपके बच्चे को घर के रूट, स्कूल के रूट और उनके एक इमरजेंसी फैमिली वाले का रूट ज़रूर बताओ. आज का ज़माना ऐसा है दैट वी नीड टू टीच रूट्स टू आवर यंग किड्स, दैट व्हाट इज़ अ वे टू गो टू समबडीज एल्स हाउस. और ये आप इतना बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं कि आप रूट्स अपनी बिल्डिंग में बच्चे को फ़र्ज़ दिखाना शुरू करें. देन टेक देम अ लिटिल आउटसाइड, but also ensure that you're telling them that they're not supposed to go alone. Okay, teach, because you've already taught them protection. Protection will have all of this. Teach them how maps are used. Maps are all just gone from our lives, and maps are so essential. You know, आज भी हम बाहर ट्रैवल करते होंगे तो आई एम श्योर आप लोग मेट्रो मैप्स देख कर जाते होंगे, डिफरेंट मैप्स हम देखते होंगे, बट बच्चों को मैप्स सिखाना बहुत ज़रूरी. Important to teach kids how to use simple basic gadgets, although you need to limit the screen time. Like I always say, 2 years and below, no screen time at all. 3 onwards you can like start giving them like 30 minutes to 45 minutes of pleasure, and the other 1 to 2 hours of like learning digital skill time. Apart from that, teach them coding, teach them some basic softwares like Python. These are all available for very very young kids on internet. It's available. There are different apps to teach coding. Coding जो है वो इनको programming सिखाएगी, because this is the age of robotics.
This will be their early orientation towards robotics. Robotics की काफ़ी free sessions available हैं. Learn it yourself, teach it to your kids. There are different mobile apps that you can engage the young kids in learning about robotics, about coding, teach them basic data analysis, teach them basic data entering, data punching. These are those core digital skills you can teach to very young kids in a very, very interactive manner. Also, it's important to teach them, orient them with the basic work skills जो कि उनको ना सिर्फ अभी बचपन में बल्कि आगे जाके भी बहुत काम आएगी. अभी चूँकि बच्चे घरों में हैं तो कोशिश करें कि उनसे रूटीन बनवाएं. डू नॉट ब्रेक देयर रूटीन नो मैटर वॉट. रूटीन मैनेजमेंट उनको बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे जाके बिकॉज दे नीड टू लर्न हाउ टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ डिसिप्लिन्ड. Give them small chances to make decisions, like what color do they need to wear, what is the food they need to eat, what is the first thing they need to do in the morning. Allow them interactions. आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, अभी आजकल तो सोशलाइजेशन का मोड ही डिजिटाइज हो गया है, बट उनसे कहें कि हो सकता है अगर आपकी दो बैल्कनीज कनेक्ट है तो स्टैंड इन द बैल्कनी, टॉक टू द अदर पर्सन स्टैंडिंग इन द बैल्कनी. टीच देम टू इंटरैक्ट, सोशलाइज. बिकॉज अगर बच्चा ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा, सोशलाइज नहीं होगा, तो वो इंटरनलाइजेशन उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा, यानी बच्चा अपने अपने में रहने लगेगा. आजकल तो कोविड की वबा ऐसे है, बट आप ट्राई करें कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ उन्हें इंटरेक्शन एंड सोशलाइजेशन दे सकें. टीच देम पब्लिक स्पीकिंग. Allow them to speak in public. If you live in a very big family, joint family, allow them to share the poetries, poems. They have made a speech. Make a video, share it on your WhatsApp group with your family. So encourage public speaking so that they lose fear. बिकॉज़ ये देखा है कि हम आपकी और मेरी जनरेशन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बिल्कुल नहीं है. तो इंशाल्लाह कोविड की वबा ख़त्म भी हो जाएगी. अलाउ देम पब्लिक स्पीकिंग, या फिर हम टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन की तरफ भी जाएं इवन पोस्ट कोविड. सो एटलीस्ट असेस योर चाइल्ड कि क्या आपका बच्चा खड़े होकर 5 लोगों के सामने अपनी चीज़ को कम्युनिकेट कर सकता है. So assess your kids and provide them with the opportunities to offer them platforms where they can practice their public speaking. Teaching them, but not the least, teach them basic literacy skills. जो हमने foundation literacies की बात की in 21st century skills. Apart from that, teach them कि environmental preservation क्या होता है, किस तरह से हम अपने environment को बचा सकते हैं. They should have the literacy, environmental literacy. किस तरह हम reuse, reduce, रिसाइकिल कर सकते हैं. उनको बेसिक जनरल नॉलेज दें कि व्हाट इज़ वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट, व्हाट पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट, व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड. प्रोवाइड देम बेसिक जनरल नॉलेज. Ask them 5 questions. Do they know which country they live in? Do they know who's the founder? Do they know who's the current president or prime minister? Do they know which province they live in? As their age progress, आप उसकी severity बढ़ा सकते हैं. कोशिश करें कि अभी अगर 1-1.5 महीने का और एक्सटेंड होता है, उनको दूसरी लैंग्वेज सिखाएं, उनको ओरिएंटेशन दें अपार्ट फ्रॉम उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, सिंधी. गिव देम. अ चाइल्ड इन अर्ली एज कैन लर्न अप टू 6 to 12 लैंग्वेजेस. सो डेफिनेटली टीच देम अ गुड लैंग्वेज. उनको गेम्स सिखाएं. गेम्स नेम प्लेस एनिमल थिंग नहीं. गिव देम वन गुड गेमिंग स्किल, जैसे कि दे कुड बी वेरी गुड इन चेस, दे कुड बी वेरी गुड इन मोनोपोली. वन गेम एंड मेक देम एक्सपर्ट. बाकी सारी गेम से भी उनको खिलवाएं, मगर एक गेम ऐसी उनको आए जिसमें वो एक्सपर्ट हो जाएं. सिमिलरली इट गोज़ फॉर स्पोर्ट्स. ऑल्सो गिव देम रीडिंग स्किल्स. मेक श्योर योर चाइल्ड इज़ रीडिंग वन बुक एवरी डे. अगर अब और 1 महीना लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो आप मेक श्योर करें जब आप पहले दिन बच्चे को स्कूल भेज रहे हो तो आपके बच्चे ने एटलीस्ट 30 बुक्स पढ़ी हुई हों, 30 डिफरेंट बुक्स. दिस इज़ वेरी असेंशियल फॉर देयर इंटायर लाइफ स्पेन डेवलपमेंट. बच्चे अगर बहुत छोटे हैं तो उनको सिखाएं कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं. अगर थोड़े बड़े हैं तो आस्क देम टू राइट एवरी सिंगल डे. कीप अ जर्नल. आस्क देम टू राइट एटलीस्ट 2 to 3 sentences at least, or write anything that they have read. They should write, they should express. So I hope this will be beneficial because we had a very short time, so we didn't have much chance to go into deeper details.